جب ابو طالب کے انتقال کا ٹائم آتا ہے، اللہ کے نبی چاہتے میرے چچا کلمہ پڑھ دیں۔ او لوگو، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ مسلمان ہیں، ماں کے مرنے کے بعد کم سے کم دعا تو کر سکتے ہے، اللہ میری ماں کی بخشش کر دے۔ ذرا کوئی ابراہیم علیہ السلام کے کلیجے سے جا کے پوچھے، وہ اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیارے نبی اپنی ماں کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے نبی نے بھی اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کی اجازت مانگی، اللہ نے کہا کہ نہیں، اجازت نہیں ملے گی۔ اگر آپ کی ماں مسلمان ہے، اگر آپ کا باپ مسلمان ہے، میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو میرے پیارے ساتھی۔ ابو طالب باپ کی طرح نبی کو پالا ہے، آج آخری ٹائم ہے، انتقال کا ٹائم ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے پاس آتے ہیں۔ اے میرے چچا، آپ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، آپ میرے سہارا بن کے ہمیشہ کھڑے رہے ہیں، آج آپ کا آخری ٹائم ہے۔ اے میرے چچا، قل لا الہ الا اللہ، بس میری ایک ریکویسٹ ہے، مان لیجئے، اپنے بھتیجے کی ایک بات مان لیجئے۔ اے چچا، لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے۔ اے چچا، اس کلمے کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے حق میں لڑائی لڑوں گا اور آپ جنت میں جائیں گے، بس یہ کلمہ پڑھ کے آپ دنیا سے چلے جائیے۔ ابو طالب سوچ میں پڑ گئے، کیا کروں، بھتیجا اتنا بول رہا ہے، پڑھ دوں کیا کلمہ؟ وہیں پر ابو جہل بیٹھا تھا، وہیں پر عبداللہ بن امیہ بیٹھا تھا، اس نے کہا ہے ابو طالب خبردار، مرنے کا ٹائم ہے، زندگی بھر اپنے باپ دادا کے طریقے کو فالو کرتے رہے، مرنے کے ٹائم کہیں باپ دادا سے بغاوت مت کر دینا۔ اے ابو طالب، اپنے باپ دادا کا طریقہ نہ چھوڑ کے چلے جانا، اپنے باپ دادا کے نام پہ کلنک مت لگنے دینا، اپنے بھتیجے کی بات مت ماننا، جو تیرے باپ دادا کا دھرم ہے اسی دھرم پر قائم رہنا۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ آخری جملہ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو طالب یہ کہہ کر کے دنیا سے گئے، علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر ابو طالب کے پاس وہ ابو جہل نہ بیٹھا ہوتا، عبداللہ بن امیہ نہ بیٹھا ہوتا، تو شاید ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے، مگر بری سنگت اور برے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو اس کا اثر تو ضرور پڑے گا۔ ہماری بہت ساری مسلمان لڑکیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں، اور وہ کالج گرلز کالج ہوتا ہے، وہاں لڑکے نہیں پڑھتے، صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں۔ ماں باپ تو بڑے خوش ہیں، چلو آج کے دور میں ہماری لڑکی کوئی ایجوکیشن میں نہیں پڑھ رہی ہے، لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھتے تو بوال ہوتا، چلو لڑکیوں کے کالج میں پڑھ رہی ہے، ہماری لڑکی سیف ہے۔ معاف کیجیے، آپ کی لڑکی سیف نہیں ہے۔ آپ کی لڑکی جن لڑکیوں کے ساتھ پڑھتی ہے، آپ تو بڑے دیندار ہیں، آپ تو اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن آپ کی لڑکی جس کالج میں پڑھتی ہے وہاں بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جن کے 10 بوائے فرینڈ ہیں، جو رات رات بھر لڑکیوں سے چیٹنگ کرتی ہیں، جو زنا کرتی ہیں، جو بدکاری کرتی ہیں، اور آپ کی لڑکی جب ایسی لڑکیوں کے ساتھ پڑھے گی تو ان کا اثر آپ کی بیٹی کے اوپر بھی پڑے گا۔ صحبت کا اثر پڑتا ہے میرے پیارے ساتھ۔ ابو طالب کے اوپر صحبت کا اثر پڑا، کلمہ نہیں پڑھ سکے، انتقال ہو گیا، اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے نبی، آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے میرے پیارے ساتھ۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے،
ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی آنکھوں میں روشنی ہی نہیں ہے، آپ کے گھر میں بڑے بڑے بلب لگا دیے جائیں، بڑے بڑی مرکری لگا دی جائے، بڑے بڑے ٹیوب لائٹ لگا دیے جائیں، اگر آپ کی آنکھوں میں روشنی ہی نہیں ہے تو لائٹ کا کیا فائدہ ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ابو طالب نبی کے چچا ہونے کے باوجود، نبی کے گارجین ہونے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھ پائے۔ ایک اور مثال دے دوں آپ کو، حضرت نوح علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ 950 سال تک، 950، 1000 میں 50 سال کم، اتنی عمر تک حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دین کو پھیلاتے رہے۔ اگر آج نماز پر کرم ٹولہ میں تقریر ہوئی اور کل صبح کوئی فجر نہ پڑے تو معاف کرنا، تقریر کرنے والے کا کیا قصور ہے؟ ہر سال جلسہ ہو رہا ہے، پردے پر تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن آپ کے کرم ٹولہ میں جیسے ہی میں داخل ہوا، میں نے دیکھا جوان لڑکی اپنی ماں کے ساتھ جلسے میں آ رہی ہے، ہونٹوں پر لپسٹک بھی لگی ہوئی ہے، چمکدار کپڑا بھی پہنے ہوئے ہے، خوشبو میں بسی ہوئی ہے اور تقریر سننے کے لیے آ رہی ہے۔ کتنی تقریریں علماء نے بیان کی، نہ بے پردگی میں کمی آئی، نہ بے حیائی میں کمی آئی۔ اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اس میں تقریر کرنے والوں کا، بیان کرنے والوں کا کیا قصور ہے؟ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور تھوڑے سے لوگ ان کے اوپر ایمان لائے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح بس بہت ہو گیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح علیہ السلام ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے پوچھا نہیں اے اللہ کشتی کیوں بناؤ، پانی تو نہیں ہے یہاں پہ۔ حضرت نوح علیہ السلام گنگا کے کنارے تھوڑی رہتے تھے، ان کو لال بتھانی سے منیہاری ہم کو جانا ہو تو ہمیں کشتی کا سہارا لینا پڑتا ہے، بیچ میں ندی ہے، وہاں تو دور دور تک ندی نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام نے، اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ، نوح علیہ السلام نے لاجک نہیں پوچھی۔ آج ہمارا نوجوان ہر چیز کی لاجک پوچھتا ہے۔ مولوی صاحب، ایک عورت کا میرے پاس میسج آیا، مولوی صاحب یہ بتائیے کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو 4 مہینہ 10 دن کی عدت کیوں گزارنی پڑتی؟ میں نے کہا کہ میری بہن، بیوی کو اپنے شوہر کے احترام میں، میاں بیوی کا رشتہ احترام کا رشتہ ہے، بیوی اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے، سمان کرتی ہے، رسپیکٹ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شوہر مر جائے تو بیوی 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے۔ اور پھر میں نے اس بہن کو یہ بھی نصیحت کی کہ ہر چیز کی لاجک مت تلاش کیا کرو، شریعت میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی، کوئی لاجک نہیں، کوئی لاجک نہیں۔ جاڑے کا موسم آیا، آپ موزہ پہنے ہوئے ہیں، ٹرین پہ میں سفر کر کے آتا ہوں، اپنی منزل پر پہنچا، دیکھا موزہ بہت گندا ہو گیا ہے، میں وضو کی حالت میں، اگر میں نے موزہ پہنا ہوا ہے، شریعت کہتی ہے کہ سفر میں آپ 3 دن تک موزہ پہنے وضو کیجئے اور پیر دھونے کے بجائے پیر کے اوپر مسح کر لیجئے۔ اب لاجک یہ کہتی ہے کہ صاحب جب میں نے موزہ پہنا ہے تو موزے پر جو ڈسٹ لگ رہا ہے، جو گندگی لگ رہی ہے، وہ تو نیچے لگ رہی ہے، تو مسا تو نیچے ہونا چاہیے، مگر مسا نیچے نہیں، مسا اوپر ہوگا۔ دین میں ہر جگہ لاجک نہیں چلے گی میرے پیارے صاحب۔ اللہ نے کہا اے نوح کشتی بناؤ، نوح علیہ السلام نے لاجک نہیں پوچھی، کشتی بنانے لگے، یہ بھی نہیں پوچھا اللہ کشتی کیوں بنا رہا ہو، پانی تو دور دور تک نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، اب کشتی بناتے چلے جا رہے، قوم کے لوگ آتے چلے جا رہے، کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب قوم کے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو بھائی حضرت نوح تو بڑئی بن گئے، یہ تو بڑئی کا کام کر رہے ہیں، یہ تو کشتی بنا رہے، لوگ مذاق اڑا رہے، لوگ ٹھٹھا کر رہے ہیں، لوگ ہنسی اڑا رہے، مگر نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔
सबक ये दे रहे हैं, ऐ सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले, ऐ दीन के रास्ते पे चलने वाले, दुनिया तेरा मजाक उड़ाएगी, तू परवाह मत करना। ऐ नकाब पहनने वाली खातून, तू नकाब पहन के निकलेगी, कोई नारा भी लगाएगा अपने मजहब का, तू खामोशी से आगे बढ़ जाना। ऐ दाढ़ी रखने वाले नौजवान, तेरी दाढ़ी का मजाक भी उड़ाया जाएगा, तू अपनी दाढ़ी पर कभी शर्माने की कोशिश मत करना। कहीं लोगों के हंसी मजाक को सुन करके अपनी दाढ़ी को साफ मत कर देना, कहीं लोगों के हंसी मजाक को सुन करके अपने नकाब से ऐ मुसलमान औरत तो समझौता मत कर लेना। हजरत नूह ने सबक दिया। दुनिया कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है, हाथी की चाल पे कुत्तों के भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते चले जा रहे हैं और कौम के लोग मजाक उड़ाते चले जा रहे हैं। कश्ती बन करके तैयार, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नूह, अब एक काम करो, इस कश्ती पर जितने ईमान वाले हैं सबको शामिल कर लो, और तुम्हारे जितने परिवार के लोग हैं उनको भी कश्ती पर बिठा लो। वमिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, और हर जानदार, हर जानवर का जोड़ा भी अपनी कश्ती में रख लो, जो भी जानदार तुम्हारे सामने मौजूद है। नूह अलैहिस्सलाम ने जितने ईमान वाले थे, मुट्ठी भर थोड़े से ईमान वाले थे, सबको अपनी कश्ती पे सवार कर लिया। उनका परिवार भी कश्ती में आ गया। उनकी एक बीवी उनके ऊपर ईमान नहीं लाई, वो कश्ती पे नहीं चढ़ी, और उनका एक बेटा ईमान नहीं लाया, वो कश्ती पे नहीं चढ़ा। बेटे का नाम कनान था, जो उलमा ने बयान किया है, वल्लाहु आलम, उसका नाम कनान था। कनान नाम का लड़का बैठा नहीं कश्ती पे, नहीं सवार। जब कश्ती के चलने का टाइम आया, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन से पानी निकलने लगा, पूरी जमीन पानी से भर गई, हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। अगर आपको नूह अलैहिस्सलाम के तूफान का अंदाजा लगाना है तो यूट्यूब पे जाके देखना, जब सुनामी आई थी तब क्या हाल था। इंडोनेशिया के वो इलाके जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें समुद्र के किनारे थी, ताश के पत्तों की तरह डह गई, गिर गई, उन इलाकों से जाके पूछ लेना और अंदाजा लगा लेना कि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान कैसा आया था। आज भी तूफान आता है तो इंसान की कोई बनाई नहीं बनती, इंसान की कोई ताकत काम नहीं आती। अरे तूफान तो बहुत बड़ी बात है, इतनी तरक्की कर गया हमारा देश भारत, आज भी बिहार के कुछ इलाकों में जब सैलाब आता है, जब बाढ़ आती है, तो नीतीश कुमार जी भी कुछ नहीं कर पाते। कटिहार के कई गांव के गांव डूब जाते हैं, पूरी बस्ती डूब जाती है। गांव के लोग जितने दिन सैलाब आता है अपना गांव छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। इस सैलाब का, इस बाढ़ का भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इंसान अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के आगे इतना मजबूर है। इंसान कहता है आई एम सो पावरफुल, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। अरे तू क्या शक्तिशाली है, तेरी औकात नहीं है। कितनी बीमारियां हैं, तेरे पास कोई इलाज नहीं। इतनी मेडिकल साइंस तरक्की कर गई, कैंसर का अभी तक कोई कामयाब इलाज नहीं तलाश किया जा सका। जाओ मुंबई के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जाके देखो, हजारों लोग बेचारे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने घर मकान खेत खलियान बेचकर लाखों का इलाज करा रहे। क्यों? मेरा जीवन बच जाए, मेरी जिंदगी बच जाए। इंसान अल्लाह की कुदरत के आगे मजबूर है मेरे प्यारे साथ। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर सबको बिठा लिया, उनका एक लड़का कश्ती पर सवार नहीं हुआ। काला या बुनय्या इरकब माना वला तकुम मअल कौमिल काफिरीन, कहा है मेरे बच्चे जल्दी से कश्ती पे आ जा, काफिरों का साथ न दे, तू काफिरों के साथ डूबने वाला न बन, मेरी कश्ती में आ जा। काला सहाबी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, बेटा कहने लगा अब्बा जान मैं बहुत जीनियस हूं, अगर पानी आया, पानी का थपेड़ा आया
पानी की लहरें आई। अब्बा जान मैं पहाड़ के ऊपर चला जाऊंगा। अरे पानी कितना ऊंचा जाएगा, पहाड़ तक थोड़ी जाएगा, मैं पहाड़ पे चला जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाला ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम। ऐ मेरे बच्चे, ये अजाब है, ये तूफान अल्लाह का अजाब है, और अल्लाह के अजाब से कोई पहाड़ भी तुझे नहीं बचा सकता। तूफान आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब गया, मर गया, डूब गया, खत्म हो गया, और आखिरत भी उसकी बर्बाद होगी, क्योंकि अल्लाह ने कहा था वही कामयाब होगा जो तेरी कश्ती पे आएगा। जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया, इतने बड़े नबी हैं, अल्लाह ने बता भी दिया था कि जो कश्ती में जाएगा वही बचेगा। नूह अलैहिस्सलाम को तो समझ जाना चाहिए मेरा बेटा ईमान नहीं लाया इसीलिए तो डूब गया, मगर बाप का कलेजा मानने को तैयार नहीं है। बाप बाप होता है मेरे साथी, बाप जितना भी समझदार हो जाए औलाद की मोहब्बत अंधा कर देती है। काला हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तूने वादा किया था तू मेरे परिवार को बचाएगा, मेरी फैमिली को बचाएगा। आय अल्लाह मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने डूब गया। इन्ना वादकल हक, आय अल्लाह तेरा वादा सच्चा है, तेरा वादा कहां गया? मेरा बेटा कैसे डूब गया, मेरा बच्चा कैसे डूब गया? अल्लाह, बेटे ने बाप की बात नहीं मानी, बाप समझाता रहा, बेटे ने बाप की बात नहीं मानी, बेटा डूब गया। मगर बाप की मोहब्बत देखो मेरे प्यारे साथ, जिनके बाप जिंदा है बाप की कदर कर लो मेरे भाइयों, जिनकी माँ जिंदा है माओ की कदर कर लो। न माँ कभी दोबारा जिंदगी में मिलेगी, न बाप कभी दोबारा जिंदगी में। आज चार पैसे तुम्हारे पास हैं, बाप किसको जरूरत पड़ी तो तुम्हें वो पैसे देने में हमारी जान जाती है। बीवी अलग समझा रही है, अरे चलो अब्बा को क्या जरूरत है पैसा देने की। अरे आज जिस बाप को तुम पैसा देने से कतरा रहे हो और तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, कल तुम तलाश करोगे कि कहां मेरा बाप मुझे मिल जाए, मैं उसके हाथ में कुछ पैसे रख दूं। जिस मां ने तुझको अपने पेट में 9 महीने रखा है, उस मां को छोटी छोटी जरूरतों के लिए तेरे सामने हाथ फैलाना पड़े, और आज तू उसको उसकी जरूरतें नहीं पूरी करता, उसकी दवाएं नहीं लाता, उसको तू खाने पीने की चीजें तक ला के नहीं देता। कल जब ये मां चली जाएगी तो तेरा हाथ मचलेगा कि काश मेरी मां जिंदा होती, मैं उसे नई साड़ी ला के देता, मैं उसे नए कपड़े ला के देता, मैं उसके खाने की चीज उसको ला के देता। तू तरसेगा अपनी मां को देने के लिए। मां जिंदा है तो मां की कदर कर लो मेरे भाई, बाप जिंदा है तो बाप की कदर कर लो। मरने के बाद करम तोलाम के मदरसे में अपने बाप की तरफ से एक कट्ठा जमीन भी दे दी तो बाप की खिदमत का हक अदा नहीं होगा। अगर मां की तरफ से यतीमों को खाना भी खिला दिया तो मां को जिंदगी में जो तूने खिलाया है उसके सवाब के बराबर तू नहीं पहुंच सकता। जिंदगी में मां बाप की कदर करो मेरे साथ, बाप बाप होता है। कहा अब अय अल्लाह तूने वादा किया था तू मेरे परिवार को बचाएगा, अल्लाह मेरा बेटा डूब गया, क्यों डूब गया? काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ऐ नूह तेरा बेटा तेरे परिवार में से नहीं है, तेरे अहल में से नहीं है, तेरे बेटे का अमल गड़बड़ है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, तेरे बेटे का किरदार गड़बड़ है। आज हमारे यहां बिरादरीवाद बहुत चलता है, अंसारी है तो अंसारी में ही शादी होगी। कटिहार जाता हूं, वहां शेरशाहबादी, मुसलमानों में शेरशाहबादी बिरादरी है, और एक बिरादरी वहां सुरजापुरी है। शेरशाहबादी सुरजापुरी में 36 का आंकड़ा है। दरभंगा जाता हूं, वहां शेख और अंसारी में 36 का आंकड़ा है। हमारे यूपी में सिद्धार्थनगर जाता हूं, वहां खान और जो दूसरी बिरादरी के लोग उसमें 36 का आंकड़ा। आज बिरादरी पर हम मर रहे हैं, अपनी बिरादरी पर बड़ा नाश करते हैं। अरे बिरादरी छोड़, तो नबी का भी अगर बेटा है और तेरा अमल अगर गड़बड़ है तो अल्लाह ताला क्या तेरा बाप भी तुझे नहीं बचा पाएगा। बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा।
یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. خان صاحب، انصاری صاحب، شیخ صاحب، سید صاحب، آپ کی برادری کیا ہے، آپ کی کاسٹ کیا ہے، آپ کے باپ دادا کون تھے، اللہ تعالیٰ کیا یہ میٹر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کیا اگر میٹر کرتا ہے، آپ کا عمل میٹر کرتا ہے، آپ کا ایمان میٹر کرتا ہے، آپ کا عقیدہ میٹر کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے میرے ساتھ. اسی لیے اللہ کہتا ہے انک لا تہدی من احببت، اے میرے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دے، ایسا نہیں ہے، ہدایت ہم دیتے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو آج ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. ہم اللہ کی توحید والے لوگ ہیں، اللہ کے آگے سر جھکانے والے لوگ ہیں. اللہ کے واسطے اس نعمت کی قدر کرو میرے پیارے ساتھیوں. واللہ کلیجہ دکھتا ہے جب ہم کوئی خبر سنتے ہیں، اخبار میں پڑھتے ہیں ہماری کوئی مسلمان بہن مرتد ہو گئی. اسی جھارکھنڈ کی رانچی میں ایک نصرت جہاں نام کی لڑکی جو 5 ٹائم کی نمازی تھی، جو روزے دار تھی، جو علماء کے بیانات سنا کرتی تھی، 5 ٹائم کی نمازی لڑکی، دیندار لڑکی، تقریر سننے والی لڑکی، نام تھا نصرت جہاں. فیس بک کے اوپر ایک لڑکے سے محبت ہو گئی، پیار ہو گیا، چکر چلا. اس لڑکے نے جو غیر مسلم تھا اس 5 ٹائم کی نمازی لڑکی کو اتنا بہکایا، اتنا بہکایا، اتنا بہکایا کہ یہ لڑکی نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن گئی. آپ نہیں جانتے آپ کے گھر میں رکھا ہوا موبائل کیا کیا گل کھلا سکتا ہے. آپ کی بیٹی کے ایمان کی دولت کو چھین لیا اس موبائل. اور جو مرتد ہو گیا، جو ایمان کے راستے سے ہٹ گیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو مرتد ہو گیا، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب میں چلا گیا اور اسی حال میں وہ مر گیا، اللہ فرماتا ہے دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. نہ دنیا اس کی کامیاب، نہ آخرت کامیاب. میرے بھائیوں، کیا یہ سن کر کے ہمارا کلیجہ نہیں دکھتا، ہمارے دل کو تکلیف نہیں پہنچتی کہ آج ہماری مسلمان بہنیں آج مرتد ہو جاتی ہیں، آج اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں، ان کو کوئی بتانے والا نہیں کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے. یہ اسلام تو وہ نعمت ہے کہ سمیہ بنت خیاط نام کی عورت اپنے جوان بیٹے کے سامنے ابو جہل کہتا ہے اے سمیہ تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا، تو نے اسلام نہیں چھوڑا، اے سمیہ تیرے تن سے کپڑے اتار دوں گا، تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھ کو ننگا کر دوں گا. سمیہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، تو کمزور ہو چکی ہے، مگر اے سمیہ تیرے دل میں اللہ کی محبت اور توحید کی محبت آج بھی اتنی ہی مضبوط ہے. سمیہ اپنے دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اپنے رب کی توحید کو چھوڑنے کو تیار نہیں. سمیہ کے بدن سے کپڑے اتار دیے. اللہ، یہ منظر بھی دیکھنا تھا، روئے زمین کو یہ منظر بھی دیکھنا تھا کہ جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا. یہ اذیت بھی اس بوڑھی نے گوارا کر لیا. اتنے پر بس نہ کیا ابو جہل نے، کہا اے سمیہ اگر تو نے اسلام نہیں چھوڑا میں ابھی تجھے قتل کر دوں گا. ابو جہل نے برچی اٹھائی اور سمیہ کی شرمگاہ کے اوپر دے مارا. سمیہ شہید ہو گئی، اللہ کی راہ میں پہلا خون بہانے والی خاتون بن گئی. اور میری پیاری ماں بہنوں، اپنے دین کو بچا کر کے سمیہ نے جان دے دی. کیوں؟ کیونکہ سمیہ کا عقیدہ تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ جان تو اللہ نے دی تھی، اگر آج اللہ نے مانگ لی تو میں جان دینے کو تیار ہوں. سمیہ نے جان دے دی مگر ایمان کا سمجھوتا نہیں کیا. اس ایمان کی، اس دین کی قدر وہ سمجھتی تھی. میرے پیارے ساتھی، اس اسلام کی قدر و قیمت کوئی حضرت بلال سے پوچھے. بلال ہماری اور آپ کی طرح خوبصورت تو نہیں تھے، گورے چٹے تو نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے غلام تھے. بلال کو ان کا مالک
अरब के तपते हुए सहरा पे लेटाता था, सीने पर गर्म पत्थर रखता था और बिलाल से कहता था, ए बिलाल, हम तुझे टॉर्चर करना छोड़ देंगे, तुझे तकलीफ पहुंचाना छोड़ देंगे। ए बिलाल, बस एक कंडीशन है, तू इस्लाम को छोड़ दे, तू मोहम्मद के दीन को छोड़ दे। बिलाल, तू इस्लाम को छोड़ दे, हम तुझे तकलीफ देना छोड़ देंगे। बिलाल के सीने की चर्बी पिघल रही है, मगर बिलाल की जबान से एक ही लफ्ज निकलता है, अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा रब एक है। उस रब की तौहीद के साथ मैं कोई समझौता करने को तैयार नहीं हूं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम की कदर कीमत कोई बिलाल से पूछे। इस्लाम की कदर कीमत अगर पूछना है, कोई सुहैब रूमी से जाकर के पूछे। सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मक्का से मदीना जाने लगे, अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई को साथ में लेके जा रहे हैं। मक्का के काफिरों ने पकड़ा, ऐ सुहैब कहां जा रहे हो? कहा मैं मदीना जा रहा हूं, अपने नबी के शहर जा रहा हूं। मक्का वालों ने कहा, ऐ सुहैब अपने साथ क्या लेके जा रहे हो? कहा अपना धन दौलत लेके जा रहा हूं, अपना रुपया पैसा लेके जा रहा हूं। मक्का वालों ने कहा, अतैतना सोलूकन ला माल लक, ऐ सुहैब जब तुम मक्का में आए थे तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, आज सारी दौलत लेकर के मदीना जाना चाहते हो, ऐ सुहैब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। कहा फिर क्या करोगे? कहा माल दे करके जाना पड़ेगा। सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जिंदगी भर की कमाई एक सेकंड की देर किए बगैर मक्का के काफिरों के हवाले कर दी और खाली हाथ मदीना पहुंचे। मक्का से मदीना 480 किलोमीटर का सफर तय किया और मदीना पहुंचे। अल्लाह के प्यारे नबी फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। सुहैब रूमी गए और नमाज में शामिल हो गए। नबी ने सलाम फेरा, सामने सुहैब रूमी नजर आ गए। नबी खड़े हुए, सुहैब को गले लगाया, सुहैब को गले लगाया और गले लगा करके अभी सुहैब ने कुछ बताया नहीं है, अभी सुहैब कुछ बोले नहीं है। नबी ने फरमाया, ऐ सुहैब मुझे अल्लाह की तरफ से सब बता दिया गया है, मुझे खबर दे दी गई है। ऐ सुहैब रबिह तलबैया, रबिह तलबैया, ऐ सुहैब तूने बड़े फायदे का सौदा किया है, तूने बड़े मुनाफे का सौदा किया है। वो इस्लाम हमें मिला है मेरे प्यारे साथी, जिस इस्लाम को पाने के लिए सहाबा ने अपनी जानें दे दी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो फोकट में हमें मिला है, फ्री में मिला है। इसलिए हमें इस इस्लाम की कदर नहीं मालूम है मेरे प्यारे साथी। मेरे प्यारे अजीजों, अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और ऐ ईमान वालो शैतान के रास्ते पर मत चलो, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। आज हम पूरे पूरे दाखिल नहीं, माफ कीजिए। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, बहुत तकरीरें सुनने का जज्बा आपके अंदर है, अपने घर बार को छोड़ करके जलसे में आई हो, पिंडाल में आई हो। अगर आप तकरीर तो सुनती हो, कुरान तो सुनती हो, नबी की हदीसों को तो सुनती हो, लेकिन अगर आप इस्लाम की बात नहीं मानती हो, पर्दा नहीं करती हो, हया नहीं करती हो, शौहर की बात नहीं मानती हो, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं करती हो, तो माफ करना मेरी बहनों, आप इस्लाम में पूरी की पूरी दाखिल नहीं है। अल्लाह कह रहा है, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नबी के जमाने में एक औरत आती है। अल्लाह के नबी के पास जब औरतें आती थी बैत करने के लिए, अल्लाह के नबी पर्दे के इस पार होते थे, उस पार औरतें होती थी। वो औरत बैत कर रही है, अल्लाह के नबी के ऊपर बैत कर रही है, नबी पर्दे के इस पार, औरत इस पार है। अल्लाह के नबी कहते चलो बैत करो, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करोगी। कहती है मैं वादा करती हूँ अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करूंगी। फिर नबी कहते हैं वला यसरिकना, चोरी नहीं करोगी। कहती है मैं चोरी नहीं करूंगी। फिर नबी फरमाते वला यज़नीना, ज़िना नहीं करोगी। जब ज़िना का नाम सुना, उस लड़की ने, उस औरत ने जल्दी से अपने सर पे हाथ रख लिया और कहा क्या अल्लाह के नबी, क्या कोई इज्जतदार औरत ये काम भी कर सकती है? हजरत आयशा कहती है अल्लाह के नबी को जब पता चला
کہ जिना का नाम सुन करके उस औरत ने जल्दी से अपने चेहरे पर, अपने सर पर हाथ रख लिया और कहा कि क्या कोई इज्जतदार औरत जिना भी कर सकती है? नबी को उस औरत की ये अदा बहुत पसंद आई कि वो औरत इतनी इज्जतदार औरत है, इतनी पाक दामन औरत है कि जिना का लफ्ज सुन करके उसने कहा कि नहीं, एक इज्जतदार औरत तो ये काम नहीं कर सकती। आज हालात इतने बुरे हैं मेरे प्यारे साथियों, आज पाक दामन मर्दों और औरतों को तलाश करना मुश्किल हो रहा है। बदकारी इतनी फैल रही है, जिनाकारी इतनी फैल रही है, हराम रिश्ते इतने पनप रहे कि आज पाक दामनी को तलाश करना मुश्किल हो रहा है। मैं मर्दों से भी कहूंगा, मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा, उदखुलू फिस्सिल्मि काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मैं यज़मल्ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना। दो चीजों की गारंटी दे दो, एक जबान की गारंटी दे दो, एक शर्मगाह की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी यहां तक फरमाते हैं कि हर इंसान के मुकद्दर में जिना का हिस्सा लिखा हुआ है। आंखों से गंदी चीज को देखना आंखों का जिना है, जबान से गंदी बातें निकालना जबान का जिना है, कानों से गंदी चीजों को सुनना ये कानों का जिना है, हाथों से गलत चीजों को टच करना ये हाथों का जिना है, और पैर से गलत चीज की तरफ चल के जाना ये पैर का जिना है। यानी हर इंसान कोई हाथ का जिना कर रहा है, कोई पैर का कर रहा है, कोई आंखों का कर रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इब्ने आदम के मुकद्दर में जितना लिखा है उतना वो जिना कर रहा है। और जब इंसान अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करता, हाथों की हिफाजत नहीं करता, कानों की हिफाजत नहीं करता, तो अल्लाह के नबी कहते हैं, वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, फिर दिल में गंदे ख्यालात पैदा होते हैं, गंदी ख्वाहिशात पैदा होती है, और फिर शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है या उसको झुटला देती है। यानी अगर आपने अपने आप को आंखों के जिना से नहीं बचाया, कानों के जिना से नहीं बचाया, जबान के जिना से नहीं बचाया, तो असल जिना से बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे नौजवान भाइयों, आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सबके हाथ में इंटरनेट है। आज नबी की इस हदीस को समझने की जरूरत है। और मैं फिर वही आयत पढ़ता हूं, उदखुलू फिस्सिल्मि काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और आगे बढ़िए, शादी ब्याह को देख लीजिए, चाहे आपके झारखंड के इस इलाके की अंसारी समाज के लोग हो, चाहे आप बंगाल में चले जाएं, बंगाल को देख लीजिए, आप बिहार चले जाएं, बिहार में शेरशाहबादी बरादरी के लोगों को देख लीजिए। शादी ब्याह में बहुत सारी हराम चीजें आज हमारे समाज में चल रही हैं। जहेज चल रहा है, कहीं बारात चल रही है, कहीं बाकायदा लड़की वालों से बाकायदा लंबी चौड़ी डिमांड की जा रही है। हमारे एक साथी हैं, हमारे साथ टीचर हैं, बिहार के रहने वाले हैं, 8-9 लड़कियां हैं उनकी, बेचारे पूरी उम्र उनकी गुजर, अभी रिटायर होने वाले 2-3 साल में, अभी भी कई लड़कियों की शादी बाकी है। एक लड़की का रिश्ता लगा, अगले दिन मदरसे में आए, मैंने कहा मास्टर साहब मुबारक हो, आपकी बेटी का रिश्ता लग रहा है। कहा कि शेख साहब रिश्ता तो लग रहा है, खुशी की बात है, मगर दुख की बात यह है लड़के ने 5 लाख की डिमांड की है। मैंने कहा लड़का करता क्या है? कहा कि लड़का राजगीर का काम करता है, मिस्त्री का काम करता है, घर मकान बनाने वाला मिस्त्री का काम करता है। गौर करो ये हालात है। वो तो मास्टर साहब थे, सरकारी टीचर थे, उनको चलो उनके पास कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम था। जिस गरीब के पास इंतजाम नहीं है वो बेचारा अपना खेत बेचकर, अपनी जमीन बेचकर, बैंक से कर्जा ले लेके अपनी लड़कियों की शादी कर रहा है। ओ लोगों, कब तुम्हारी आंखें खुलेगी, कब होश आएगा? पानी सर से ऊपर जा चुका है। आज इन रस्मों की वजह से कितने गरीब हैं जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जवान बेटियां जवानी की दहलीज को पार कर रही हैं।
اللہ نہ کرے اگر ان لڑکیوں کے قدم بہک گئے، ان لڑکیوں نے غلط راستہ چن لیا، میرے پیارے بھائیوں وہ لڑکیاں تو گنہگار ہوگی مگر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار کون ہوگا؟ بڑی اچھی پہل ابھی بنارس سے ہوئی ہے۔ بنارس میں انصاری سماج میں ایک تنظیم چلتی ہے، بنکر برادرانہ تنظیم اس کو بولتے ہیں۔ اس تنظیم نے ابھی ایک اعلان کیا ہے کہ کوئی جہیز نہیں لیا جائے گا، 4-5 چھوٹے چھوٹے برتن باپ اپنی خوشی سے لڑکی کو دے گا، کوئی جہیز نہیں دیا جائے گا۔ شادی کے موقع پر صرف 5 جوڑا کپڑا دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ بارات نہیں جائے گی، شادی میں ولیمہ میں بھی ایک طرح کا کھانا ہوگا، ایک سے زیادہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ ابھی یہ ساری میٹنگ ہوئی ہے، سارا قانون پاس ہوا ہے، عمل ہو تو بڑی بات ہے، لیکن یہ میٹنگ ہونا اور اس طریقے کا قانون بننا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ میں سواگت کرتا ہوں اس طریقے کی پہل کا، اور میں چاہتا ہوں کہ بنارس سے نکلنے والی یہ آواز آپ کے جھارکھنڈ، گوڈا، صاحب گنج اور آپ کے اس علاقے میں بھی اس پر عمل ہو، اور یہاں بھی ہمارے جو چاہے انصاری سماج کے لوگ یا اور دوسری برادری کے لوگ ہوں اپنے شادی بیاہ کو میرے ساتھیوں آسان کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جس اسلام کو تم فالو کرتے ہو، اگر وہ اسلام تم کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ بتاتا ہے، زکوٰۃ کا حکم بتاتا ہے، حج کا طریقہ بتاتا ہے، تو وہ اسلام آپ کو شادی بیاہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ نبی کی حدیثوں میں آپ کو نکاح کا چیپٹر بھی ملے گا، نبی کی حدیثوں میں مہر کا بیان ملے گا، نبی کی حدیثوں میں ولیمہ کا بیان ملے گا، لیکن نبی کی کہیں بھی حدیثوں میں آپ کو جہیز کا بیان نہیں ملے گا، بارات کا بیان نہیں ملے گا۔ یہ جہیز، یہ بارات، یہ رسم و رواج جن کی وجہ سے آج جینا حرام ہے سماج کا، اللہ کے واسطے میرے پیارے ساتھیوں ان رسموں کو چھوڑ دو۔ اور نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں ذرا گٹس پیدا کرو، ذرا ہمت پیدا کرو، اپنے باپ سے جا کے کہہ دو، اپنی ماں سے جا کے کہہ دو کہ اے میری ماں میں کوئی جہیز نہیں لوں گا، میں سمپل طریقے سے سنت طریقے سے شادی کروں گا۔ میرے ساتھیوں انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے وقتی طور پر تمہیں کچھ تکلیف ہو سکتا ہے وقتی طور پر تمہیں لگے یار سب لوگ لے رہے ہیں میں کیوں نہیں لے رہا ہوں، مگر آگے چل کر کے آپ احساس کریں گے اللہ اس نکاح میں برکت عطا کرے گا۔ میرے پیارے ساتھی اور آگے بڑھی، ایک آدمی 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے، جب مارکیٹ میں بزنس کرنے جاتا ہے، مسجد میں 5 ٹائم کی نمازیں پڑھنے والا اور راتوں میں تہجد کی نماز بھی پڑھنے والا، جب مارکیٹ میں دکان پر بیٹھتا ہے، جب بزنس کرتا ہے، وہاں جھوٹ بھی بولتا ہے، وہاں وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، وہاں کسٹمر کے ساتھ فراڈ بھی کرتا ہے، وہاں وہ حرام طریقے بھی اپناتا ہے۔ اے میرے بھائیوں تم کاروبار میں اپنے بزنس میں یہ کیوں بھول گئے کہ تم مسلمان ہو؟ جس دین کو تم مانتے ہو، جس مذہب کو تم مانتے ہو، وہ مذہب تمہیں کاروبار کرنا بھی سکھاتا ہے، وہ مذہب تمہیں بزنس کرنا بھی بتاتا ہے۔ کیا نبی نے آپ کو بزنس کرنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما۔ جب ایک آدمی سامان خریدتا ہے، ایک آدمی سامان بیچتا ہے، اگر دونوں سچ بولتے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اور اگر دونوں جھوٹ بولتے ہیں مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْهِمَا، اللہ ان کے کاروبار کی برکت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک دن مارکیٹ گئے، ایک صحابی اناج بیچ رہے تھے، غلہ بیچ رہے تھے، غالباً گیہوں یا جو کی دکان تھی ان کی۔ نبی نے ان کے جو کے اندر ہاتھ ڈالا، اندر کا جو بھیگا ہوا، اوپر کا سوکھا ہوا۔ نبی نے کہا یہ کیا ہے میرے بھائی؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی بارش ہو گئی تھی، اناج بھیگ گیا تھا، غلہ بھیگ گیا تھا، جو بھیگا ہوا غلہ تھا اگر اوپر رکھتا تو کسٹمر نہ خریدتے، میں نے نیچے ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی یہ تو دھوکہ ہو گیا، کسٹمر آئے گا، سوکھا اناج دیکھے گا، آرڈر دے گا،
اور तुम निकालोगे तो अंदर गीला अनाज होगा। ये तो कस्टमर के साथ फ्रॉड हो गया। ऐ मेरे सहाबी, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो कस्टमर को धोखा दे रहा है, जो खरीदार को धोखा दे रहा है, वो हम में से नहीं है। धोखाधड़ी करने वाला हम में से नहीं है। ओ लोगों, आपके नबी ने आपको कारोबार करने का तरीका भी बताया है, जरा पता तो करो। मसला ये है, आज की दुनिया का इंसान पैसा कमाने के लिए बेचैन बना है। पैसा कैसे भी आना चाहिए, हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है, धोखाधड़ी करके आ रहा है, झूठ बोल करके आ रहा है, 420 करके आ रहा है, इससे मतलब नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, कयामत के पहले कैसा दौर आएगा, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल, इंसान परवाह नहीं करेगा। आपके इसी इलाके में बंधन बैंक, बंधन लोन की शक्ल में औरतों को लोन दिया जा रहा है और बाकायदा इंटरेस्ट पर लोन दिया जा रहा है, और घर की औरतों को इन्वॉल्व करके लोन दिया जा रहा है, और चंद पैसों के लिए, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं, 5,000, 10,000, 20,000 का अमाउंट बैंक के जरिए इंटरेस्ट पर, ब्याज पर आज मुसलमान ले रहा है। मेरे भाइयों, जिस मुसलमानों के समाज में लाखों करोड़ों रुपये लोग अपने फालतू के शौक पर उड़ा देते हैं, काश हम कोई संस्था ऐसी बनाते, कोई इदारा ऐसा बनाते, कोई यूनिट ऐसी बनाते। हमारा कोई गरीब भाई है, उसको पैसे की जरूरत है, हम कोई ऐसा सिस्टम बनाते, आ मेरे भाई हम तुझे कर्जा देंगे और इसको कोऑपरेटिव बुनियाद पर देंगे, हम तुझे बगैर इंटरेस्ट के कर्जा देंगे, तो धीरे धीरे करके हमारा कर्जा भर देना। ऐसा कोई सिस्टम हम बनाते तो हमारी बहुत सारी कौम के लोग आज ब्याज से बच जाते। ये ब्याज इतनी खतरनाक चीज है, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह की लानत हो ब्याज खाने वाले पर, ब्याज खिलाने वाले पर, ब्याज की गवाही देने वाले पर और ब्याज लिखने वाले पर, सब पर अल्लाह की लानत। इस गुनाह से मेरे प्यारे साथियों अपनी समाज को हम बचा सकते थे। और आगे बढ़िए, आजकल हमारा नौजवान सट्टेबाजी कर रहा है, जुआ खेल रहा है, ड्रीम 11 के जरिए, ऑनलाइन एप्स के जरिए। पहले लोग जुआ खेलते थे ताश के पत्तों के जरिए, आज जमाना तरक्की कर गया, मोबाइल पर गेम खेल के आज जुआ खेला जा रहा है। एविएटर एक गेम आता है, कैसीनो एक गेम आता है, बहुत सारे गेम आते हैं, उसमें जुआ चल रहा है। और हमारा नौजवान अपनी गाढ़ी कमाई को जुआ में लगा रहा है, सोचता है रातों रात अमीर बन जाएगा। मेरे नौजवानों, अल्लाह के वास्ते ये शॉर्टकट मत अपनाओ पैसा कमाने के, पैसा कमाने का प्रॉपर तरीका अपनाओ, बहुत दौलत मिलेगी इंशाअल्लाह, बहुत बरकत देगा अल्लाह ताला। इसी भारत की सरजमीन पर हमारे सामने बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। चाहे रतन टाटा की जिंदगी आप उठा के देख लें, जो टाटा कंपनी के मालिक थे, अभी हाल में उनका इंतकाल हुआ। चाहे विप्रो कंपनी की असीम प्रेम जी की जिंदगी को आप पढ़ लें, चाहे रिलायंस कंपनी के फाउंडर धीरूभाई अंबानी की जिंदगी पढ़ लें, ये जितने बड़े बड़े कारोबारी हैं, इनकी जिंदगियों को आप उठा के देखें। इन्होंने ग्राउंड से शुरुआत की थी, जमीन से शुरुआत की थी, किसी छोटे बिजनेस से शुरुआत की थी, मेहनत करते रहे, ईमानदारी से लगे रहे, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते रहे और अपने कारोबार को बहुत आगे लेकर के गए। मेरे प्यारे साथियों, आप हलाल तरीके से बहुत पैसा कमा सकते हो, हराम तरीके से कमा करके अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़िए, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमने ये समझा नमाज पढ़ लिया बस हो गए मुसलमान, मुसलमान के घर में पैदा हुए, खतना करा लिया, सर पे टोपी लगा लिया, लुंगी पहनने लगे, हो गए मुसलमान। नहीं मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ स्टाइल का नाम है। इस्लाम इस पर भी लागू होता है। आप अपनी बीवी के लिए शौहर कैसे हैं, आप अपने बच्चों के लिए बाप कैसे हैं, आप अपने पड़ोसी के लिए पड़ोसी कैसे हैं। एक इंसान लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक करता है, मगर अपनी बीवी के लिए वो जल्लाद बना हुआ है, बीवी से ढंग से बात नहीं करता, बीवी को हमेशा गुस्सा दिखाता है, बीवी पर हमेशा रोब झाड़ता रहता है, बीवी को गुलाम बना के रखा है। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, मैंने अपने कानों से सुना है, कहने वाले यहां तक कहते हैं औरत पैर की जूती है,
उसको कभी सर पे न चढ़ाना और न सर पे चढ़ करके पेशाब कर देगी। ये जुमला मुसलमान कहता है। ओ लोगो, जिस औरत को तुम पैर की जूती करार दे रहे हो, मेरे नबी क्या फरमाते हैं? खैरुकुम li अहलिही व अना खैरुकुम li अहली। ओ लोगो, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा है, और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि मैं अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा हूं। आपकी 9 बीवियां एक साथ रहती थी, आप उनके नखरे भी उठाते थे, आप उनकी ख्वाहिशात को पूरा भी करते थे, उनका हक भी अदा करते थे, सफर में जाते थे, कुरान अंदाजी करते थे, ड्रॉ करते थे, जिस बीवी का नाम आता था उसको लेके जाते थे। अभी कल एक साहब का फोन आया, कहने मौलवी साहब एक मसला पूछना है। मैंने कहा क्या मसला है? कहा अगर किसी की 2 बीवियां हैं और जिस बीवी के पास उसकी बारी लगी है, मान लीजिए हफ्ते में 2 दिन इस बीवी के पास, 2 दिन उस बीवी के पास उसने बारी लगाई है। अब जिस बीवी के पास वो गया है, वो बीवी अगर पाक नहीं है, पीरियड में है, तो क्या वो अपनी पहली वाली बीवी के पास जा सकता है? मैंने कहा तो बड़ा पेचीदा मसला आपने पूछ लिया भाई। मैंने कहा अच्छा आप ये मसला पूछ रहे हैं कि आपकी 2 है? तो कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी साहब मेरी 2 है। तो 2 वाले भी कभी कभी फोन करते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मैं घर पे नहीं था, और हमारी अहलिया तो जल्दी से फोन काट देती है कि 2 वाला क्यों फोन कर रहा है। तो अब बीवियां 2 है, लेकिन इंसान इस बात की चिंता कर रहा है कि कैसे उनके साथ इंसाफ करो। आज हालात क्या है? एक बीवी वाला भी अपनी बीवी के साथ जुल्म और सितम कर रहा है। मेरे अजीजों, ये बीवी, नबी अकरम ने अपनी बीवियों के साथ हुस्न सुलूक करके ये तालीम दी है कि आप अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, पक्के मुसलमान बनिए, पूरे मुसलमान बनिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे बाप बनिए। ये जो हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, कभी आपने गौर किया ये मुर्तद क्यों हो रही हैं? उसके बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें एक वजह यह भी है, जिन बच्चियों को घर में प्यार नहीं मिलता, कभी मां ढंग से बात नहीं करती, कभी बाप मोहब्बत से बात नहीं करता, तो उन लड़कियों को मोबाइल पर कोई जरा सा आई लव यू बोल दे, जरा सा मोहब्बत के चंद जुमले फेंक दे, जरा उनके बालों की तारीफ कर दे, उनके चेहरे की तारीफ कर दे, तो वो लड़कियां लट्टू हो जाती हैं और उनके लिए मोम बन जाती हैं। इसलिए अपनी लड़कियों को ये नाजायज मोहब्बतों के जाल से बचाना है, तो जायज मोहब्बतें उनको दो, अपने बच्चियों से प्यार करो। मेरे प्यारे साथियों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करते थे। 4 बेटियां आपकी थी, 4 बेटियां आपकी थी। बड़ी बेटी ज़ैनब थी, उसके बाद रुकैया थी, उसके बाद उम्मे कुलसूम थी, और सबसे छोटी बेटी फातिमा थी। हजरत फातिमा की शादी आपने हजरत अली से की थी। हजरत हसन और हुसैन की मां थी हजरत फातिमा। जब हजरत फातिमा कभी नबी के पास आती थी, नबी की जिंदगी में 3 बेटियों का इंतकाल हो चुका था, बस यही एक बेटी बची थी, सबसे छोटी बेटी थी, सबसे लाडली बेटी थी। जब ये नबी के पास आती थी, अम्मा आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी अपनी बेटी का वेलकम करते थे। बेटी को देख करके आज घरों में माहौल ऐसा बन गया है कि घर में बेटी आ जाए तो बहू अपनी नाक मुंह बनाने लगती है कि हमारी ननद आ गई। भाई भी बेचारा धीरे से किनारे हो जाता है कि बहन आ गई तो बहन के बच्चे भी आ गए, उनको पैसा देना पड़ेगा, सामान देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने आपको बहन से नवाजा है, इस बहन की मोहब्बत की कदर करो। आज के इस दौर में अगर आपकी बहन वक्त निकाल करके आपके घर आती है, उस बहन के इस रिश्ते की कदर करो, वरना एक जमाना वो आएगा कि तुम तरसोगे। भाई की अलग दुनिया होगी, बहन की अलग दुनिया होगी। अपनी बहनों को भी मेरे भाइयों उनका मान सम्मान दो, उनको प्यार दो, अपनी बेटियों को मान सम्मान दो। बेटियां अगर घर में हैं, इज्जत से बात करो। अल्लाह के नबी अपनी बेटियों का इस्तेकबाल, अपनी बेटी का इस्तेकबाल करते थे और खड़े होकर के अपनी बेटी से कहते थे मरहबन बिबनती, ऐ मेरी बेटी तेरा आना मुबारक हो। और अल्लाह के नबी अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे और अपने बगल में, अपने साइड में, अपने बाजू में, अपनी सीट पर अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी को बिठाते थे। बेटियों से प्यार करना भी नबी की सुन्नत है, बेटियों से मोहब्बत करना भी नबी की सुन्नत है। और बेटियों को मारना,
बेटियों पर जुल्म करना और मां के पेट में बेटियों को कत्ल कर देना, ये मुशरिकों का तरीका है, ये जाहिलियत का तरीका है, ये मोहम्मद अकरम का तरीका नहीं है, ये इस्लाम का तरीका नहीं। इस्लाम हमें एक अच्छा बाप बनने की तालीम भी देता है। अपने बच्चों की तरबियत करो मेरे प्यारे साथी। अभी ट्रेन पर मैं सफर कर रहा था, गैर मुस्लिम लड़के लड़की आपस में बात कर रहे थे। बात निकल गई कि आजकल जो मोहब्बत चल रही है, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे लड़के लड़कियां प्यार मोहब्बत के नाम पे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो उस लड़की ने बड़ी पॉइंट की बात बोली, गैर मुस्लिम लड़की थी। उसने अपने साथी से कहा, पता नहीं उसका भाई था या दोस्त था या शौहर था, जो भी था, उसने कहा कि मां बाप को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। आज लड़कियों की परवरिश करना है तो मां बाप को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो उसके साथ जो लड़का था उसने कहा कि अरे भाई, कितना भी कोई नजर रखेगा, लड़की कहां जा रही है, क्या करे, कितना भी नजर रखेगा इंसान अपनी बेटी पर। उस लड़की ने कहा कि सिर्फ नजर रखने से काम नहीं चलेगा। आज के दौर में अगर बच्चों को पालना है तो मां बाप को अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। वो लोग जो चंद पैसे कमाने के लिए अपने बच्चों को छोड़ के बाहर रहते हैं, उनसे कहूंगा भाई कम पैसे कमाओ, अपने बच्चों को टाइम दो। एक वक्त आएगा जब तुम्हारे पास पैसा तो होगा मगर बच्चे नहीं होंगे। आज अपने परिवार को छोड़ के कोई दुबई में काम कर रहा है, कोई सऊदी में काम कर रहा, और क्या जिंदगी है, कुत्तों की जिंदगी है मेरे साथी, जानवरों की जिंदगी है। यहां तो इंसान बड़े खुशी के साथ कहता था मेरे भाई तो सऊदी में काम करते हैं, जाके मैंने देखा है वो फैमिली क्वार्टर कैसे हैं, उनके रहने, वो जो ड्राइवर का काम करते हैं सऊदी वगैरह में, छोटे से कमरे हैं बेचारे, उसी में वो रहते हैं, उसी में किनारे लैट्रिन बना हुआ है, छोटे से कमरे में पूरी जिंदगी गुजारना है। मैडम का फोन आ गया, मालिक का फोन रात में 2 बजे आया तो वो ना नहीं कर सकता, ना करेगा तो जल्दी से पासपोर्ट पर स्टाम्प लगा के फौरन एयरपोर्ट भेज दिया, जाओ वापस जाओ, अपने इंडिया चले जाओ। कोई जिंदगी है वो? मैं कहता हूं कम खाओ, अपने बच्चों को बाप का प्यार तो दे दो मेरे साथ। कितनी औरतें बेचारी रोती है, मसला पूछती है, मौलवी साहब मेरा शौहर 2 साल से बाहर है, 3 साल से दुबई में है, मैं शादीशुदा औरत अकेली रहूं, कैसे रहूं? समाज कहता है कि औरतें रह लेती हैं, औरतें जरूर रह लेती हैं मगर घुट घुट के रहती हैं। और उसमें बहुत सारी ऐसी औरतें भी हैं, घर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, देवर भी रहता है, जेठ भी रहता है, कजिन्स भी रहते हैं, शौहर बाहर रह रहा है, कितने घरों में हराम रिश्ते पनपते हैं। ऐसी नौकरी, ऐसा काम जिसमें आप अपनी फैमिली को टाइम न दे सके। मेरे प्यारे साथियों, अपने परिवार से दूर रहकर 2-2 साल तक अपने बच्चों से दूर रहकर के काम करना पड़े, ऐसा काम करना ठीक नहीं है मेरे प्यारे साथी। और इसीलिए मैं तकरीरों में यह बात कहता हूं कि हमारे मदरसों में जो मौलवी लोग पढ़ाते हैं, असातिज़ा जो पढ़ाते हैं, उन असातिज़ा के लिए, उन मुअल्लिमीन के लिए भी फैमिली क्वार्टर का इंतजाम होना चाहिए। जो कौम अपने खाने पीने पर लाखों करोड़ों खर्च कर सकती है, क्या अपने कौम के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचरों के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं कर सकती? ये कौन सी जिंदगी है कि एक टीचर मदरसे में पढ़ा रहा है, 6-6 महीने पर उसके मदरसे की छुट्टी होती है, 6 महीने में एक बार बेचारा अपनी बीवी के पास जाता है। क्या उसकी बीवी को अपने शौहर के साथ रहने का हक नहीं है? क्या उसके बच्चों को अपने बाप के साथ रहने का हक नहीं है? कितनी मस्जिदें हैं, इमाम साहब के रहने के लिए बिल्कुल छोटा सा हुजरा दिया जाता है। बेचारे इमाम साहब अगर पूरा पैर फैला के सो जाए तो एक सर दीवार में लड़ रहा है और दूसरा पैर दीवार में लड़, इतना छोटा सा कमरा इमाम साहब को रहने के लिए दिया जाता है। अरे तू अपनी बिल्डिंगों में आराम से रहे, अपने बच्चों के साथ आराम से रहे, अपनी बीवी के साथ आराम से रहे, और तेरी मस्जिद का इमाम बेचारा अपनी बीवी से दूर रहे, अपने बच्चों से दूर रहे। मेरे प्यारे साथियों, ये मसले हैं जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है, जिनका हल निकालने की जरूरत है। क्या मौलवी और उस इमाम और उस मदरसे के टीचर के बच्चों के दिल में ये जज्बा नहीं कि हम अपने बाप के साथ रहें? आज का दौर वो दौर नहीं है कि बच्चे कहीं और आप कहीं और बच्चे पल जाएंगे। बच्चों को पालना है और खास तौर से बच्चियों को पालना है तो आपको अंधा, गूंगा और बहरा बन करके नहीं पालना पड़ेगा। आपको 2 आंखों के बजाय 4 आंखों के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। आपकी बेटी कॉलेज गई, 2 बजे छुट्टी हो रही, आपकी बेटी 4 बजे क्यों आ रही?
आपने बेटी को 15,000 का मोबाइल दिलाया, बेटी के पास 60-70 हजार का आईफोन कहां से आया? बेटी के मोबाइल पर 800 रुपए का रिचार्ज किसने कराया? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये जानने की? आप अंधे बन गए, आप गूंगे बन गए, आप बहरे बन गए। मैं भी मुंबई गया था, मुंबई के कुछ साथियों ने बताया कि मुंबई में बाकायदा कुछ ऐसे पिकनिक स्पॉट्स है, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे लड़के लड़कियां आपस में मिलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लवर पॉइंट, जहां लवर लोग और आपस में प्यार मोहब्बत का ढोंग करने वाले लोग मिलते हैं। और मुझे मुंबई के कुछ साथियों ने बताया कि मौलवी साहब, कभी आपको अगर मौका मिले हम चल के दिखाएंगे, उसमें बड़ी तादाद मुसलमान लड़कियों की होती है जो घर से नकाब में निकलती है और वहां आकर के अपने महबूब से मिलती है, और महबूब कोई मुसलमान नहीं होता, गैर मुस्लिम होता है, मुशरिक होता है, काफिर होता है, और मुसलमान लड़की उसके साथ मिलती है। मेरे प्यारे साथियों, अगर अफसोस इस बात का है कि मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ बाकायदा पब्लिक प्लेस में मिल रही है, उससे बड़ा अफसोस इस बात का है उसका बाप कहां मर गया, उसकी मां कहां मर गई, उसके गार्जियन कहां मर गए। लोग कहते साहब हमें अपनी बच्ची पर भरोसा है, अंधा भरोसा न करो मेरे प्यारे साथियों। अपनी आंखें खोल करके बच्चियों को पालो, अपने कानों को खोल करके अपनी बेटियों की परवरिश करो। ये जमाना अंधा भरोसा करने का नहीं है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम मस्जिद में रहते थे और उनकी परवरिश में मरियम थी, मरियम के वो खालू थे, मरियम को पालते थे, मरियम की परवरिश करते थे, क्योंकि मरियम के माँ बाप का इंतकाल हो चुका था, तो ये खालू थे, इन्होंने गोद ले लिया था और पाल रहे थे। एक दिन हजरत जकरिया मस्जिद में आए और देखा कि मस्जिद के सारे दरवाजे लॉक हैं, सारे दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, और मरियम के पास बेमौसम का फल, अनार का मौसम नहीं अनार मौजूद है, अमरूद का मौसम नहीं अमरूद मौजूद है, आम का मौसम नहीं आम मौजूद है। काला या मरियम अन्ना लकी हाजा, कहा कि ऐ मरियम ये फल तेरे पास कहां से आया? ऐ बेटियों के बाप, ऐ बेटियों की माएं, आपकी बेटी रात को 2 बजे किससे बात करती है? क्या आपको पूछने का अधिकार नहीं? क्या आपको नजर रखने का अधिकार नहीं है? आपने आंखें बंद कर ली, आपने कान बंद कर लिए, मेरी बेटी जो चाहे सो करे? नहीं, जकरिया ने पैगाम दिया, गार्जियन हो तो गार्जियन का हक अदा करो। काला या मरियम अन्ना लकी हाजा, कहां है मरियम ये फल कहां से आया? कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम ने कहा खालू जान ये फल अल्लाह की तरफ से आया है, कोई इंसान नहीं लाया, कोई मस्जिद में नहीं आया, ये फल अल्लाह की तरफ से आया है। जकरिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि अगर मेरी भांजी मरियम के पास बेमौसम का फल आ सकता है तो मैं 70 साल का बूढ़ा हो चुका हूं, औलाद मांग रहा हूं, अल्लाह से औलाद नहीं दे रहा है अल्लाह, लेकिन अगर बेमौसम का फल मिल सकता है तो मेरे जैसे बूढ़े को औलाद क्यों नहीं मिल सकती? अब वहां पे ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ, ऐ अल्लाह अपने इस बूढ़े बंदे को नेक औलाद दे दे तो दुआओं को सुनने वाला है। मेरे अजीजों, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हमें और आपको पैगाम दिया, एक जिम्मेदार बाप बनो, एक जिम्मेदार माँ बनो। और अपनी माँ से कहना चाहूंगा, आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, अपनी माँ से एक बात कहना चाहूंगा। आपने वो हदीस बहुत सुनी होगी, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, वो हदीस आपने बहुत सुनी होगी, बाप जन्नत का दरवाजा है। आज अब्दुल गफ्फार सलफी के मुंह से एक और हदीस सुन लो, जो माएँ है वो भी दिल थाम के सुने और जो बाप है वो भी कलेजा थाम के सुने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन सुम्मा यमूतु यौमा यमूतु व हुवा गाशुल लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर अल्लाह ताला ने आपके कंधे पर कोई जिम्मेदारी डाली है, आपके कंधे पर कोई जिम्मेदारी डाली, ओ जमीयत के ओहदे के हासिल करने के लिए लड़ने वालों, ओ मस्जिद का मुतवल्ली बनने के लिए लड़ने वालों, ओ मदरसे का नाज़िम बनने के लिए लड़ने वालों, आओ जरा नबी की हदीस सुन लो। अगर अल्लाह ने आपके कंधे पर कोई जिम्मेदारी डाली है और आपने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा नहीं किया, अगर आपने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से पूरा नहीं किया और उसी हाल में मर गए, जन्नत हराम हो जाएगी आपके।
जन्नत हराम हो जाएगी उस इंसान के लिए। इसीलिए सहाबा भागते थे जिम्मेदारियों से। ये जिम्मेदारी जिसको मिल जाए उसको जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के यहाँ। ऐ लड़कियों के बाप, ऐ लड़कों के बाप, तू बाप है तो तेरे कंधे पर जिम्मेदारी है तेरी औलाद, तेरे कंधे पर जिम्मेदारी है तेरी औलाद। ऐ मेरी माँ बहनों, अल्लाह ने आपके आंगन में बच्चों की किलकारियों को गूंजने की तौफीक दी है तो बहुत बड़ी नेमत है। अरे जिन औरतों के गोद में बच्चा नहीं होता, समाज ताना मार मार के उस औरत को बीमार कर देता है। अरे ये तो बाज है, ये तो बाज है, इसको तो औलाद नहीं हुई, 2 साल हो गया, 10 साल हो गए, इसको समाज ताना मार मार के उस औरत को बीमार कर देता है, मरीज बना देता है। अगर अल्लाह ने आपको औलाद दिया है मेरी माँ, यह औलाद बहुत बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस जिम्मेदारी का हक अदा करो। एक जिम्मेदार माँ बनो, एक जिम्मेदार बाप बनो। मैं ऐसे बापों को जानता हूं जो रात में तहज्जुद पढ़ते हैं मगर बेटा फजर भी नहीं पढ़ता, बेटा एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता और बेटे से कभी कहते भी नहीं कि बेटा तू नमाज पढ़। मैं ऐसी माओं को जानता हूं जो रातों में तहज्जुद पढ़ती हैं और वो माँ बैठ करके तहज्जुद पढ़ रही है और बेटी किनारे अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही है। मेरी माओ और बहनों, ये माहौल नहीं चलेगा, ये लापरवाही नहीं चलेगी। अंधी गूंगी और बहरी बनकर के जिंदगी मत गुजारो। अपनी आंखें, कान, दिल, दिमाग सब खोल करके जिंदगी गुजारो और एक जिम्मेदार माँ बाप बनो। ये चंद बातें थी मेरे प्यारे साथियों, इस हवाले से कि हम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं। शबे बारात की असलियत क्या है? क्या हम शबे बारात मना सकते हैं? ये एक सवाल आया है। देखिए एक बात समझ लीजिए, इस्लाम में कोई शबे बारात नहीं। शबे बारात असल में बराअत है। बारात का मतलब नजात। 15 शाबान की रात को बहुत सारे लोग शबे बारात कहते हैं या लैलतुल बारात कहते हैं और ये अकीदा रखा जाता है कि आज की रात अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद करता है। मगर 15 शाबान की रात के बारे में कोई भी सही हदीस मौजूद नहीं है, न नबी से कोई खास अमल मौजूद है। इसलिए 15 शाबान को आप कोई अलग से इबादत नहीं करेंगे, न उस दिन अलग से कोई रोजा रखेंगे। हाँ, शाबान के महीने में आप कसरत से रोजा रख सकते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अक्सर शाबान में रोजा रखते थे। बल्कि जिन औरतों के रोजे छूटे हुए हैं, जो औरतों के नेचुरल रोजे छूटे रहते हैं, उनको भी चाहिए कि शाबान में वो जल्दी से पूरा कर लें ताकि अगले रमजान में फिर पुराना रोजा बाकी ना रहे। जो भी पिछले साल का रोजा बाकी है शाबान में औरतें पूरा कर ले तो बेहतर है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर शाबान में रोजा रखते थे और अम्मा आयशा भी इसी महीने में रोजा रखती थी ताकि उनके रोजे की कज़ा पूरी हो जाए। तो बहरहाल शबे बारात की कोई असलियत नहीं है, इसके ताल्लुक से कोई भी सही हदीस मौजूद नहीं। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।